Yesterday we were discussing about similarity. Introduction. We have seen the introduction. Now we have seen what is similar figures and what are congruent figures. Congruent matlab same size, same shape. Similar matlab same shape but need not have the same size. Size may be different, but shape is same. That kind of triangles are known as, that kind of figures are known as similar figures. But in this chapter, we are going to discuss similarity of triangles. So same condition, जैसे polygon के लिए हमने देखा था, polygon के लिए यही बोल रहे थे कि polygon for two polygons are similar when their sides are proportional and angles are equal. So triangle is also polygon, so we can say that the triangles are similar. Two condition. One is their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal, and corresponding sides are in the same ratio. Then we say the triangles are similar. So two triangles similar होने का condition है कि angles same होना चाहिए. Angles should be same. Corresponding angles should be equal होना चाहिए. And corresponding sides सेम रेशियो में, नहीं तो प्रोपोर्शन में आना चाहिए. ठीक है. Then if the corresponding angles are equal, if corresponding angles equal, then that type of triangles are known as equiangular triangles. There is a name, equiangular triangle. Corresponding angles are same. That type of triangles are also known as equiangular triangles. तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल के बारे में एक रिजल्ट था. सो एक मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन, उनका नाम था थेल्स. उन्होंने एक रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट बताया. एंड द रिजल्ट इज दिस: द रेशियो ऑफ any two corresponding sides in two equiangular triangles is always the same. The ratio of, so इधर हमें पता है, इधर triangle similar है कब? Their corresponding angles are equal, corresponding sides are in the same ratio. So and corresponding angles equal है तो that type of triangles are also known as equiangular triangles. So equiangular triangle में जब देखो इन्होंने थेल्स ने कब उनका डेट देखो, डेट ऑफ 640 to 546 BC, उसका मतलब बिफोर क्राइस्ट. हम अभी तो जैसे कैलेंडर में हम अन्ना डोमिनी बिफोर BC AD, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब अन्ना डोमिनी. इवन क्राइस्ट के पहले कितना साल पहले, 607 साल पहले था इनका, जो उसी ईरा में था. आप सुन रहे क्या मेरा वॉइस? Yes, sir. ओके. Yes, sir. उस समय उन्होंने रिजल्ट बनाया, उन्होंने उसी समय बोला. तो सोचो कितना साल पहले है. तो ये कितना जीनियस था, सोचो. उसी समय उन्होंने बोला है कि इक्विएंगुलर ट्रायंगल में ऐसे एक प्रॉपर्टी है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम रहेगा. एंड दैट प्रॉपर्टी हैज ए पर्टिकुलर नेम. उसको ऐसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम बोलते थे. BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बट अभी उसका नाम है, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उसका नाम बना दिया थेल्स थ्योरम. बट वो जो थ्योरम है, it is known as basic proportionality theorem, or it is also known as Thales theorem. अभी उसका नाम थेल्स थ्योरम रखा है, but the result is basic proportionality theorem. And that what is the basic proportionality theorem is, equiangular triangle में साइड्स का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम रहेगा. दैट इज नोन एज बेसिक
proportionality theorem. Okay, is it clear? So हमें ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरी चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा थ्योरम्स पढ़ाई करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाई करेंगे, उसमें से सिर्फ एक ही का प्रूफ, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ हमें पढ़ाई करना, बाकी का प्रूफ का कोई जरूरत नहीं, बाकी आपको रिजल्ट समझना है, बस उतना ही है। बट दिस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ हमें चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास नाउ। पहले उसके बाद जब टाइम है तो हम प्रॉब्लम भी करेंगे। दिस वन, दिस थ्योरम इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो एक पर्टिकुलर वे बताया है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersect the other two sides in distant points, then the other two sides are divided in the same ratio. So सिंपल वे बोलेंगे तो एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी, and a line is drawn parallel to one side of the triangle. See, either A B C is the triangle, A B C is the triangle. A line DE, a line DE drawn parallel to BC, parallel to BC. Then what the theorem says, so BC को DE, I said to go, I'll write to the right side. This theorem is very important. ये concept आपको पक्का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यही concept यूज करके ही करते हैं, so you should be thorough with that concept. Triangle ABC is given. Okay, is given. Okay, given triangle. हम क्या करेंगे? We will draw one line parallel to one side of the triangle. So हमने क्या किया? DE एक लाइन ड्रॉ किया, DE पैरेलल टू BC, ट्रायंगल का ये एक साइड को पैरेलल करके एक साइड लाइन ड्रॉ किया, देन दैट लाइन डिवाइड्स, दैट लाइन टचेस द अदर टू साइड्स। सो ये लाइन DE AB को D में टच कर रहे, DE AC को E में टच कर रहे, राइट? सो वो क्या करेगा, और लाइन DE अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे करके बोला। दैट मीन्स व्हाट इट सेज इज, व्हाट वी हैव टू प्रूव इज DE। सो अभी हम थ्योरम यही बोल रहे कि DE, one second, let me, DE divides AB, other two sides are AB and AC, AB and AC को, AB and AC in the same रेशियो, सेम रेशियो में कट करेगा। एक लाइन एक साइड को पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ए बी को डिवाइड करेगा मतलब ऐसे, AD डिवाइडेड बाय AD divided by DB, AD divided by DB, it is same as AE divided by EC.
दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो आपको सबसे पहले, क्योंकि प्रॉब्लम करने में हमें थ्योरम रट्टा मार के रखे कोई फायदा नहीं. सो वी हैव टू नो द कंसेप्ट वेरी वेल. दिस इज वन ऑफ द, मे बी यू मे फील डिफिकल्ट चैप्टर, क्योंकि दिस इज ज्योमेट्री एरिया. बाकी सब अलजेब्रिक एरिया था, बहुत ईजी था, सिर्फ कैलकुलेट करना था, बहुत आसान था. बट ये समझ कर पढ़ाई करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. तो इसलिए जो भी रिजल्ट बोल रहे, ऐसे रट्टा मारने से चाहिए कि वो रिजल्ट क्या बोल रहे, व्हाट द रिजल्ट सेज, वो हमें ठीक से समझ में आना. तो यही बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल ए बी सी. सो ट्रायंगल के लिए 3 साइड होगा, ए बी बी सी ए सी. उसमें से कोई भी एक साइड को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया. तो इधर हमने डी ई बी सी को पैरेलल ड्रॉ किया. नाउ देन ओ डी ई बाकी दोनों साइड को भी कट करेगा, बट ऐसे कट करेगा कि वो रेशियो सेम होगा, ऐसे सेम रेशियो में कट करेगा. दैट मीन्स ए टू डी लेंथ डिवाइडेड बाई डी टू बी, ए डी बाई डी बी, AD by DB is same as AE by EC. Did you understand the theorem? थ्योरम समझ में आ गया? अभी तक मैंने प्रूफ वाला कुछ नहीं बताया, सिर्फ थ्योरम क्या बता रहे वही बताया है. आपको समझ में आ गया what the theorem says? Yes, sir. Yeah, so that is the meaning of Yes, the sir. theorem. That's the meaning of the theorem. Now I am going to that proof. So इतना ही बताया. एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के लिए 3 साइड्स है, उसके कोई भी एक साइड के लिए पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया. सो इधर डी बी सी के लिए पैरेलल ड्रॉ किया. देन वो लाइन बाकी दोनों साइड को कट करेगा, बट वो कट करने के लिए एक स्पेशलिटी है, ऐसे कट करेगा कि उसका रेशियो सेम होगा. ए डी बाई डी बी इज सेम एज ए ई बाई ई सी. दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूफ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रूफ. सो इधर से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं. प्रूफ. सो बी ई एंड सी डी ज्वाइन किया. इधर देखो, दिस बी ई, इधर बी ई एंड सी डी ज्वाइन किया. और हमने इधर एक डी एम, सो ऊपर एक ट्रायंगल था, सो उस ट्रायंगल के लिए एक हाइट ड्रॉ किया वर्टेक्स डी से ए ई को. सो वर्टेक्स डी से एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ किया, डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई ए सी, नहीं तो ए ई, एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी. ऐसे 2 परपेंडिकुलर. सो 4 लाइन हमने इधर कंसिडर किया. एक लाइन ऐसे है कि डी टू सी ज्वाइन किया, बी टू नीचे जो ट्रेपीजियम जैसे आ रहे हैं उसका डायगोनल ज्वाइन किया, बी टू ई ज्वाइन किया, सी टू डी ज्वाइन किया. ऊपर एक ट्रायंगल आ रहा था ए डी ई, उसके लिए 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. एक तो वर्टेक्स डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डी टू एम डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, नहीं तो ए ई, ऐसे ड्रॉ किया. देन ई एन दूसरा साइड के लिए, उसका ऑपोजिट साइड ए डी, नहीं तो ए बी के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल है. सो area of triangle is equal to half into base into height. ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू, इधर अपने मान लीजिए आपने बेस ए डी पकड़ा है, तो हाइट क्या होगा, एन ई, नहीं तो ई एन. सो दैट इज वाई हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन. आपने बेस ए ई पकड़ा है तो इट इज हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम. हाइट विल बी डी एम एट दैट टाइम, डी एम. इधर बेस ए डी पकड़ा, सो बेस ए डी, सो हाइट हो जाएगा ई एन. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ऊपर जो ट्रायंगल दिख रहा है ए डी ई, उसका एरिया निकाल रहे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन. सो आप ऐसे लिख सकते, आपने 9th क्लास में पढ़ाई किया था, जैसे इट इज लाइक, यू कैन राइट लाइक दिस, एरिया ऑफ ए डी ई, ऐसे लिख सकते हैं, आपने 9th क्लास में लिखा था, इज इक्वल टू
half into AD into EN, AD into EN। ध्यान से सुनना नहीं है तो बाद में इधर उधर ध्यान जाएंगे तो बाद में समझ में नहीं आएगा। इवन बोलने में भी मेरा ध्यान इधर उधर गया तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप ध्यान से सुनना। नाउ एरिया ऑफ BDE। सर आप पूछेंगे सर वो क्यों हम ऐसे एरिया वगैरह निकाल रहे, तो वो प्रूफ करने के लिए इसका एरिया चाहिए, इसलिए हम कर रहे, क्योंकि इसका प्रूफ मुझे पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहे, तो उसका प्रूफ के लिए सब चाहिए, इसलिए मैं ये सब बता रहे। एरिया ऑफ BDE, तो BDE ट्रायंगल देखो आपको समझ में आने के लिए मैं इधर एक ऐसे स्लोली वो उसका थोड़ा शेड करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा BDE किधर है। दिस इज, ये जो पर्पल किया ना, दिस इज ये BDE। सो इट इज हाफ इंटू बेस, मैंने BD पकड़ा, BD। अब अभी देखो इसका हाइट, सो BD हाइट चाहिए तो E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना BD को, बट इधर अंदर नहीं आएगा, वो परपेंडिकुलर इधर ही आएगा। हियर इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर। देखो हाइट जो ट्रायंगल के बाहर, दिस इज द हाइट, इजंट इट? क्योंकि आपको BD को आप E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा ना, क्योंकि अंदर आएंगे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। सो दिस इज परपेंडिकुलर। आपको ये पता है ना, कभी परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल के अंदर आ सकते हैं, ट्रायंगल के बाहर जा सकते हैं, ट्रायंगल में भी आ सकते हैं। डू यू नो दैट? यस सर। Yes, देखो sir. इधर एक, देखो आई विल शो यू, दिस इज ऑप्टिस एंगल का होता है। acute triangle। I'm just telling this, this is right triangle, this is obtuse triangle। मैं तीनों केस में उसका जो ऊपर का जो वर्टेक्स है, ऊपर का वर्टेक्स है, मैं आई एम गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट केस में इट इज सिंपल, परपेंडिकुलर मतलब यू विल गेट a line under, this is perpendicular। second case में that line itself, this itself is a perpendicular, right? Isn't it? second case में that line itself is a perpendicular। इधर देखो ये perpendicular हो गया था। फर्स्ट केस में ये perpendicular हो गया था बेस के लिए। so इधर third case में it is obtuse triangle। so if you draw perpendicular, it cannot be inside, so what you have to do is you have to extend that side। तो वैसे एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको। so इधर से आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करने के बाद आप इधर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दैट विल बी योर हाइट, दिस इज योर हाइट। देखो 3 सिचुएशंस। सो एक्यूट ट्रायंगल में हाइट ट्रायंगल के इनसाइड आएगा, राइट ट्रायंगल में जो ट्रायंगल में ही आएगा हाइट, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ट्रायंगल का बाहर जाएगा हाइट। हाइट मींस दिस डिस्टेंस इज हाइट। so either BDE is obtuse triangle, BDE is obtuse triangle, that is why height अंदर नहीं आएगा। so ये साइड BD ऐसे इधर एक्सटेंड किया, उधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, NE परपेंडिकुलर टू AB हमें पता था। तो that is why area of BDE equals BD into NE or EN।
BD into EN. Okay. Now area of अभी मैं एक मिनट दूसरा कलर यूज करता हूँ. एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE, इधर भी मैंने एरिया ADE निकाला था, बट उसी समय मैंने बेस AD पकड़ा था. अभी मैं इधर बेस AE पकड़ेंगे, तो इट इज हाफ इंटू AE into, if I take AE as the base, if I take AE as the base, AE, this is as the base, height is DM, right? So it is AE into DM, isn't it? Understood? Similarly, area of triangle DEC, triangle DEC, which is equal to half into DEC. इधर मैं आपको चाहिए तो ग्रीन में मार्क करूंगा. DEC आपको समझ में आने के लिए, दिस इज DEC. DEC, this is DEC, you can see that this is DEC. So मैंने बेस उसका EC पकड़ा है, बेस EC पकड़ा. So it is half into EC into EC into, so that also obtuse triangle. तो height बाहर आएगा, the height is DM, this is the height. EC को जो एक्सटेंड किया, DM is the height. DM. वेरी सिंपल. चार ट्रायंगल का एरिया मैंने निकाला. ओके. नाउ area of ADE, now I'm going to say area of ADE divided by area of ADE divided by BDE. I'm going to divide these two areas, area of ADE divided by area of BDE. ये हमें इधर मिला था दोनों पहले फर्स्ट टू ट्रायंगल्स, हाफ इंटू ये डी इंटू EN डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्रायंगल था BDE, उसका एरिया था हाफ इंटू BD इंटू EN. आप देखेंगे तो EN दोनों कट हो जाएगा, हाफ कट हो जाएगा. तो आपको मिलेगा ये D बाय BD. सिमिलरली नेक्स्ट टू ट्रायंगल का रेशियो में निकाल रहे. नेक्स्ट टू ट्रायंगल्स का एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC. मैंने एरिया ऑफ ADE दो प्रकार निकाला था. सो
that is again half into AE into DM divided by half into EC into DM. अब देखेंगे तो DM DM कट हो जाएगा, हाफ हाफ कट हो जाएगा, आपको मिलेगा AE डिवाइडेड बाय EC. Correct? Isn't it? Sir. Yeah. Now देखो दो एक्सप्रेशन इधर मिला, आप इसको ओके इसको आप 1 कॉल करेंगे, इसको 2 कॉल करेंगे. नाउ दोनों इसमें से देखो लेफ्ट साइड में ऊपर एरिया ऑफ ADE है, सो एरिया ऑफ ADE इज सेम एज एरिया ऑफ ADE. मैं थोड़ा ऊपर लिख रहे, जगह नीचे नहीं है इसलिए, ठीक है. आप जब नोट करते थे वैसे लिख देना, एरिया ऑफ ADE इज सेम एज एरिया ऑफ ADE. उसमें से आपको कोई डाउट नहीं क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल है. डिनोमिनेटर देखो, एक द एरिया ऑफ BDE, दूसरा द DEC. इन दोनों के एरिया के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? इक्वल है सर वो. क्यों? Equal है सर. क्यों इक्वल है? Triangle on the Same same base base on on same the parallel. same parallel. Yes, that is the reason. So it is between एक second. 1 second, my pen is not working. 1 second. Okay, between same parallel लाइन, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, एंड ऑन सेम बेस. ये रिजल्ट आपने लास्ट ईयर पढ़ाई किया था. कोई भी फिगर, इफ 2 ट्रायंगल है तो भी, 2 पैरेललोग्राम है तो भी, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम बेस है तो उन दोनों का एरिया सेम होगा. इसलिए BDE एंड DEC, BDE एंड DE दोनों का एरिया सेम है. दैट मीन्स इधर जो लेफ्ट साइड में था ADE, इधर ADE, नीचे BDE, इधर नीचे भी DEC. सो लेफ्ट साइड दोनों का सेम है ना. सो दैट मीन्स राइट साइड ऑल्सो सेम. Understood? So from here you can conclude that that implies AD by DB, नहीं तो BD is same as DB. सिर्फ इतना है कि D पहले लिखा, that's all. AD by DB is equal to AE by EC. आया समझ में? This is the most important. Is it clear? Yes, sir.
So this theorem is known as basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem. Okay. So it says like this. ये ट्रायंगल का कोई भी एक साइड के लिए एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो दैट लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स in the same ratio. Okay, and this is one of the most important theorems, and you need to study only the proof of this theorem. To study the proof, okay, understand the result very well, and tomorrow we will discuss the questions based on this theorem. Okay, then see you tomorrow. Take care. Okay. Bye, sir. Thank you, sir. Attendance based though, ठीक है.